प्रभुंकर बहुमूल्य नामर धन्य हो। प्रभु अनुग्रह करी आज आमको सानिध्य सेवा उपासना करने सुंदर अवकाश देले। यह संदर्भ में प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम आजिर यही पवित्र सेवागृह रे संगृहित होइथिबा जेतेक प्रभुंकर भक्त दास दासी माननकु मु नमस्कार सह आह्वान करे। आजिर यही उपासना प्रारंभ करू करू आमाने समस्ते प्रभुंक नाम रे प्रार्थना करिबा, पुणी परमेश्वर नाम रे आमाने समस्ते उपासना रे अग्रसर हबा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौछु तुमरी असीम कृपा दया अनुकंपा हेतु आमाने तुम सानिध्य को आसी तुम सानिध्य रे समवेत होई तुम सेवा करिबा पाई एही सुंदर अवकाश पाइलु। तुम दास दासी को आम समस्त को तुम्हें यही उपासना द्वारा अनुग्रह कर बोली भिक्षा करुछु। धन्यवाद स्तुति स्तोत्र सह जीशुंक नाम रे आजिर यही उपासनार भार को तुमको दे तुम्हें सकल कार्य सभापतित्व करी नियंत्रण कर बोली जीशुंक नाम रे प्रार्थना कलु। आमेन। प्रिय प्रभुंक दास दासी माने आजिर उपासना प्रारंभ करू करू आमाने गोटे भक्तिमूलक संगीत गान करी प्रभुंक नाम रे आजिर उपासना प्रारंभ करिबा। मु अनुरोध करी आमानकर संगीत दल यही समय आउ बेदी निकट को आसबे, पुणी प्रभुंक नाम रे गोटे भक्तिमूलक संगीत गान करिवे।
ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ନେଇଛି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ଯାଏ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା, ଯାହାର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧର୍ମର ଆରୋପ ନ କରନ୍ତି ଓ ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ମୌନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନଯାକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇଲା, କାରଣ ଦିବାରାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ଥିଲା। ମୋହର ରସ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶୁଷ୍କତାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଓ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପାପ ଘଟିତ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କଲ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଦାଉଦ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗୀତ ସଂହିତା 32 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଗୀତ ସଂହିତା 51 ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ସମୟର ଗୀତ ବୋଲି ଆମମାନେ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଳେ। ତାହା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପାପକୁ ଗୋପନ କରେ, ତା ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ସେ ପାପ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ, ପୁଣି ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିଜ ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପାପକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ତଦନୁସାରେ ଆଉ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେଠି ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ତାହାକୁ ଆଉ ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 32 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ ପୁଣି 2 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାଠ କରୁ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା, ଯାହାର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧର୍ମର ଆରୋପ ନ କରନ୍ତି ଓ ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପାପ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟତଃ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ବତ୍ସବାଠାରେ ଗମନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ, ପୁଣି ସେ ହୃଦବୋଧ କଲେ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ ପୂର୍ବକ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଖେଦକ୍ରନ୍ଦନ ପୂର୍ବକ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିତାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଆଉ ସେ ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତିରୁ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା, ଯାହାର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି ସେ ଧନ୍ୟ। ତା ତଳ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧର୍ମର ଆରୋପ ନ କରନ୍ତି ଓ ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ 4ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଅପରାଧ, ପାପ, ଅଧର୍ମ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଉ ପାପ
कार्य करुवा गोटे विषय को इंगित करे बोली आम मैंने हृदबोध करिथाउ किंतु यार विभिन्न तात्विक भावार्थ अच्छी आ प्रभुंक दृष्टि जेतेबेले ए चारि गोटी शब्द विषय आम मैंने चिंता करूँ प्रथमतः आम मैंने ये स्थान देखुचु अपराध विषय लेखा अच्छी अपराधर वास्तविक परिभाषा होची सीमा लंघन ताकू इंग्लिश भाषा रे ट्रेसपास बोली कहा जाए। सीमा लंघन गोटे यही प्रकार कार्य जहाँ जड़े व्यक्ति आउ परमेश्वरंकर आज्ञा विहुने कार्य करिथाए। अपराधर अर्थ होची सीमा लंघन अर्थात प्रभु जहाँ आज्ञा करि नाहंती ताहा करिबा। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले आम माने हारणंकर पुत्र मानक विषय रे देखु लेवी पुस्तक तार 10 अध्याय देखुछु सेठी हारणंकर दुई पुत्र थिले तांको ना होछि नादब और अबिहु। प्रत्येक आपणा आपणा अंगारधानी नहीं तहिरे अग्नि देई तहि उपरे धूप रखिले पुणी सदा प्रभु जहाँ आज्ञा करि नथिले एपरी इतर अग्नि ताहांक छामुरे उत्सर्ग कले। अर्थात परमेश्वर जहाँ आज्ञा करि नाहंती ताकू जेतेबेले जड़े व्यक्ति करने को चेष्टा करे बा ताकू कार्यक्षम करे ताकू अपराध बोली कहा जाए। ये विषय आम माने आउ ए स्थान रे परिलक्षित करुछु। आउ सेदिन हारणंकर दुई पुत्र जाजन कर्म करुथुवा दुई पुत्र नादब और अबिहु परमेश्वर जहाँ आज्ञा करि नाहंती सही प्रकार गोटे आउ धूपाची नहीं परमेश्वरंकर आउ उपासना करने को चेष्टा कले। तार अर्थ होची आम माने जेतेबेले परमेश्वर जहाँ आज्ञा करि नाहु सही प्रकार विषय को कार्यक्षम करने को चेष्टा करिथाउ ताको अपराध बोली कहा जाए। द्वितीयतः आम माने एही शास्त्रांश देखुछु जार पाप आच्छादित होई अछि। ए स्थान रे पाप शब्द मध्य गीत रचक व्यवहार करिसंते। अनेक समय प्रभु जहाँ आम जीवन रु चाहि नथांती ताहा आम करने को चेष्टा करिथाउ। अनेक समय परमेश्वर जहाँ आम जीवन रु चाहि थांती ताहा को अवहेला करिथाउ। एई प्रकार आम जीवन यापन रहे। सो प्रभु जहाँ आज्ञा करि नाहंती ताहा करिबा होछि अपराध आउ प्रभु जहाँ आज्ञा करिसंती ताहा न करिबा होछि पाप। एहाकू बाइबल पंडित माने आउ अपराध पुणी पापर पार्थक्य विषय व्याख्या करती। तल अंश लेखा अछि सदा प्रभु जहाँ प्रति अधर्मर आरोप न करती ओ जହାର आत्मारे प्रवंचना नहीं से धन्य। ए स्थान रे देखुछु भक्तवर दाऊद आउ गोटे शब्द व्यवहार कले। भक्तवर दाऊद से कहती सदा प्रभु जहाँ प्रति अधर्मर आरोप करते नहीं। अधर्म कौन? अधर्म हूँ यही प्रकार गोटे विषय जहाँकि यही प्रकार गोटे कार्य जहाँकि परमेश्वरंकर अनुपस्थिति रे परमेश्वरंकर तत्व पुणी व्यवस्था वाक्यर बिना व्यवहार रे करा जाए। अर्थात अधर्म को धर्मच्युत अवस्था बोली कहाजिबो बा धर्म छाड़ अवस्था बोली कहाजिबो। इंग्लिश रे ताको डिस्टर्शन बोली कहा जाए। मोर प्रभुंकर दासदासी माने सेथिपाई आम माने जेतेबेले प्रभुंक सानिध्य को आसु एई केतेक विषय को आम माने नितांत जानी रखिबा दरकार। सेथिपाई परमेश्वरंकर अनुपस्थिति रे परमेश्वरंकर व्यवस्था वाक्यर विरुद्ध रे परमेश्वर जो विषय को धर्म बोली घोषणा करती ताकू न व्यवहार करी आम माने जेतेबेले कौनसी कार्य करू ताकू अधर्म बोली कहा जाए। तल अंश आम माने देखुचु प्रवंचना निज आत्मारे प्रवंचना करिबा। अनेक समय आम माने गोटे प्रकार प्रभुंक सानिध्य रे किबा मंडली मध्य अभिनय मान करिथाउ। यह मध्य परमेश्वरंकर ग्रहणीय नुह। अनेक समय आम माने बाहर देखा जाउथुवा भल लोक परी किंतु आम मानकर
जो आभ्यंतरणीय अवस्था अच्छी ताहा हुए तो एक प्रकार भिन्न मानसिकतार सह परिचालित होउथबो सही प्रकार विश्व को प्रवंचना बोली कहा जाए। मु आम समस्त को अनुरोध करी एठी दाऊद जो चारि गोटी परमेश्वरंकर विरुद्धाचरण करिवार कार्यपंथा को व्याख्या करिसंती ए सकल जो माने करूचंती सेमानंको पाई आउ दाऊद गोटे शिक्षा प्रदान करिसंती। जेतेबेले दाऊद 3 पदरे हम माने देखुछु जेतेबेले से अपराध कले परमेश्वरंकर विरुद्धाचरण कले बत्सवा ठारे गमन कले सही समय तांकर थिबा विभिन्न कुकार्य मान बा पाप मान ताहाकु से गुप्त करी रखिबाकु चेष्टा करुथिले। तळंशरे से आ विश्वासी मानकु चेतई दियंती निज जीवनी द्वारा से कहंती मु मौनी होई थिबा बेले दिन जाक आर्तनाद करिबा द्वारा मोहर अस्थि सबु क्षय पाइला कारण दिवारात्र तुम्भ हस्त मो उपरे भारी थिला मोहर रस ग्रीष्मकालीन शुष्कतारे परिणत हैला बोली लेखा अछि। तार अर्थ आम माने स्थान रे देखुचु दाऊद जेतेबेले पाप कले परमेश्वरंकर विरुद्धाचरण कले से समय से निजर पाप अपराध को गोपनीय करी रखिबाकु चेष्टा कले से मौनी होई रहिथिले बोली लेखा अछि। आउ से जेते समय मौन भाव आउ प्रकाश कले सेते समय तांको जीवन रे विभिन्न प्रकार आभ्यंतरणीय समस्या मान हैला तांको शरीर रे ताहार प्रभाव पड़िला तांकर व्यक्तिगत आभ्यंतरणीय जीवन रे प्रभाव पड़िला। सेतेबेले दाऊद कहंती 5 पदरे मु तुम्भ निकटरे आपणा पाप स्वीकार कली ओ आपणा अधर्म लुचाइली नाही मु कहिली मु सदा प्रभुंक निकटरे आपणा अपराध स्वीकार करिवी तहिरे तुम्भे मोहर पाप घटित अधर्म क्षमा कल। आम्मानक जीवन रे मध्य दाऊदंक परी अनेक अवस्था थाए अनेक परिवेश सेमती थाए। आम्माने परमेश्वरंकर विरुद्धाचरण करी आउ निजर कृत पाप को गोपनीय भाव में रखा चेष्टा करूँ। आम्माने जेतेबेले पाप को गोपनीय भाव में रखू नितांत से पाप आम्मानकु विभिन्न प्रकार शारीरिक समस्या मानसिक समस्या सामाजिक समस्या परिपार्श्विक समस्या मध्य ढाली दिए। से समय आम्माने जेतेबेले दाऊदंक न्याय आम्माने पाप स्वीकार करी प्रभुंक निकट को आसु निजर हृदयर समस्त कथा पश्चाताप पूर्वक परमेश्वर ठारे प्रकाश करू आ से समय प्रभु आउ से आम्माने जेमिति आम्माने प्रथम जोहन 1 अध्याय 9 पदर देखुछु जदि आम्भे माने अपना अपना पाप स्वीकार करू ताहेले आम्मानकर सकल पापरु से आम्भ मानकु क्षमा करिबाकू ओ परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान बोली प्रकाश करती ताहा से साधन करिथांती। एई समय आम्माने एई स्थान रे देखि पारुछु जे दाऊद कि प्रकार निजर पापर बोध पाइले आ प्रभुंक ठारे क्षमा भिक्षा करी पश्चाताप पूर्वक परमेश्वरंकर निकटवर्ती हेले से समय प्रभु आउ तांकु कि प्रकार क्षमा कले से क्षमा पाइला परे ए वाक्य कहंती जाहार अपराध क्षमा जाहार पाप आच्छादित होइअछि से धन्य सदा प्रभु जहा प्रति अधर्मर आरोप न करती और जार आत्मारे प्रवंचना नहीं से धन्य। यही कथा जड़े पापरु क्षमा पाइथिबा व्यक्ति विशेष यही प्रकार घोषणा करिपारे। सेथिपाई आसु आम्माने जदि मनुष्य भावरे निजर आत्मिक जीवन यात्रा मध्यरे यदि परमेश्वरंकर विरुद्ध किछि त्रुटि करिछु ताहले पश्चाताप पूर्वक से क्षमाकारी ईश्वरंक निकट को जीवा आम्माने समस्ते प्रभुंक ठारे निज निजको समर्पण करिबा।
आसतु माने आजिर उपासना सांग करू करू प्रभुंक नाम रे प्रार्थना करिबा पुणी आशीष भिक्षा सह आजिर उपासना सांग करिबा प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौछु दाऊदंक जीवन तुमे आमको शिक्षा प्रदान कल प्रार्थना करुछु तुम दास दासी आम समस्त को से पश्चातापर मनोवृत्ति प्रदान कर आम जेपरी तुमठारे निजको समर्पण करी तुमरी गौरवार्थे आउ निजको व्यवहार करने पाई जीशु ख्रीष्ट क्षमाकारी ईश्वर जे जगत को आसी आम निमंते क्रूस उपरे प्रायश्चितर बलि स्वरूप उत्सर्गीकृत होती तांको चरण तले शरणापन्न होगापाई तुमे आमको दया कर ए वाक्य निमंते तुम दास दासी मान निमंते तुमको धन्यवाद दे जीशुंक नाम रे प्रार्थना कलु आमेन। एतेबेले पिता ईश्वरंकर असीम प्रेम परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह दया नित्य नित्य साहाय्यकारी पवित्र आत्मा ईश्वरंक पराक्रम शक्ति शांति सहभागिता एतेबेले एठाका स्थित तुमरी आश्रित जन पुणी तुम रक्त रेखित मंडली सहित रे वर्तमान पुणी सदाकाल संगे संगे हेउ आमेन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।